carry. Mr. Metro, thank you. Mr. Amir, Mr. Ayaz Tuniu, Mr. Qurban Malanu, Mr. Parvez Thakur, Mr. Jawad Eo, Mr. Jal, whatever you were speaking, and your kind words, really I am thankful. You have highlighted many issues and delivered through judgments. With the permission of Mr. Junaid, my all colleagues, our Chief Justice, I have only few words. That my journey as a member of legal fraternity continues, and still that is continuing. And every state, whether as a lawyer, as a judge of Sindh High Court, are now embarking on a new and greater responsibility, has been part of learning and growth. In my view, the law is not just a profession but a profound duty, one that demands both knowledge and empathy. Throughout my career, I have sought to understand the miseries of the common man, which is our majority population, and they are living under the mental state of Stockholm syndrome. I am aware that in majority of our society, our people, though we are top judges of this court, top qazis, we must be aware about their miseries and the communities who are less miserable. I am inspired by Victor Hugo's novel, Less Miserable, who are not owned by anyone and deprived from every right. They are born without rights. And always I have stood with those who suffer under justice, believing that the law must serve as a shield for the vulnerable rather than a weapon of the powerful. As a member of the legal fraternity, I have explored the landscape through two schools of thoughts, because there are different opinions about different areas. And this is not a new thing, because there are two schools of thoughts, hard positivism and soft positivism. I have always aligned myself with the latter, soft positivism, striving to interpret and extend the law in the ways that address the hardship of those living within a deeply feudal social structure of this province especially, and deprived from their fundamental rights. There remains much to be done, and my role in this journey is still unfolding and continuing. To all who have stood by me, my family, friends, fellow lawyers, my colleague, my brother judges, your support has been invaluable. And especially I extend my deeper gratitude to my dedicated paralegal staff, particularly my former reader, Mr. Shahnawaz, and my current reader, Mr. Sajid Khan, at present who is with me. I also wish to acknowledge the tireless efforts of Mr. Sajid Akhtar, Mr. Mohammad Imran Khan, Mr. Mohammad Zishan, Mr. Abbasi Daftari, Mr. Ikram with name as Farash, Mr. Rafiq Hawalda, driver Sher Mohammed, and my gunman, Mr. Tai.
their dedication to work as a team been instrumental in my journey. In the last, I will say that history remembers those who strive for justice. I remain committed to playing my role not as a passive observer but as an active force for change. Since my judgments are not just legal decisions, they are reflection who I am and what are my principles and my unwavering commitment to justice. I am thankful to all that you bear me for 12 and a half years. And I must say, जिस तरह आपने लव दिया और जितना आपने प्यार किया, जिस तरह मैं आपसे सीखा हूँ, because we all are student of love, और always I try कि मैं स्पेस दूँ हेयरिंग का, ताकि समझने की कोशिश करूँ इश्यू क्या है। ये मेरी कमिटमेंट रही और मेरी ये सोच भी रही कि लिटिगेंट की आवाज़ से जज की आवाज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। Now I would request the Honorable Chief Justice, Justice Mohammad Shafi Siddiqui, to address the audience. Senior Puny Justice Salahuddin Pawar Sahab, Senior Judge Justice Junaid Ghaffar Sahab, all my colleague judges, brothers and sisters, Mr. Sarfraz Ali Medlo, President Sindh High Court Bar Association. In fact, different variety of Medlo. I hope all brothers are here. Mr. Qurban Ali Malano, आपने तो मुझे 1860 में पैदा करा दिया। थैंक यू। मिस्टर एयाज तोनियो, गुलाम दस्तगीर शाह साहब नहीं आ सके अपनी शायद बीमारी की वजह से, विल प्रे फॉर हिम। मीर परवेज़ अख्तर तालपुर साहब, हाई कोर्ट मीरपुर ख़ास के प्रेसिडेंट, अमीर नवाज बड़ाई साहब, कराची बार के प्रेसिडेंट, मिस्टर ज़ियाउल हक मखदूम, द एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने मुझे स्कूल कॉलेज की सीक्रेट्स बताई। मेरे पास भी आपकी दो चार हैं मगर मैं नहीं बताऊंगा। I don't know if I should call acting Advocate General or you are the acting Advocate General, Mr. Javed Ahmadiyar. Senior counsels जिनको मैं देख सकता हूँ यहाँ नजर आ रहे हैं. Of course, I'll start with Mr. Mansoor Larafin, my mentor, Mr. Bhajan Das. Yes, I'm reading. Mr. Ejaz Ahmed, I found him standing right there. Mr. Khalid Javed, Mustafa Lakhani, Mr. Yasin Azad, Mr. Badr Alam, Naveen Merchant, my friend Imtiaz Civil Court, Mr. Adnan, Mirza Sarfraz Sahab, माजर के साथ अगर कोई नाम रह गया, काजी अशरफ साहब, नईम कुरैशी साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जो कुछ भी आपके सामने 1992 के बाद से मेरा करियर आपके सामने है एज एन एडवोकेट, एज ए जज, काफ़ी बातें हो गई आप लोगों के सामने। I thought I should share something with you which is not revealed to you, not those which were mentioned by Mr. Makhdoom. So I'll keep it with me. So I was born in a family with having 4 brothers and 2 sisters.
My father died early, very early, when I was 4. I was brought up by my amma, mother, my brothers and sisters. Uh, both my paternal and maternal family, they are landlords. So अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद सडनली कुछ चीज़ें होती हैं जो रुक जाती हैं. बट बिलीव यू मी, मेरा ब्रॉटअप मेरे माँ ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने इस तरह किया कि मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुआ. आई स्टडीड द बेस्ट स्कूल, Jofelist of its time. Then I went to DJ College. वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद then I went to SM Law College. I'll share my school days, early school days. I remember the time कि हम 2 बजे, 1:30 बजे घर आ जाते थे. उसके बाद I was not allowed to make friends outside. गली मोहल्ले में हमें इजाज़त नहीं थी, मुझे इजाज़त नहीं थी. तो हम 2 से लेके शाम तक कभी पतंग उड़ाने चले जाते थे, कभी कबूतर उड़ाने चले जाते थे छत पे. तो मुझे याद है एक दिन उसकी सज़ा मिली. काफ़ी शोर मचाया, तो वालदा ने दोपहर को सोते हुए मेरे बड़े भाई को कहा कि ये बहुत तंग करता है, बहुत शोर मचाता है, इसको मदरसे में जाके जमा कराया कि ये 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मदरसे में जाएगा. अच्छा जी, तो एक तो कुरान पढ़ने का और दूसरा ये कि जो मैं तंग करता था मुझे वो ठीक कर दें मौलवी साहब. बहुत ज़्यादा मैं शोर मचाता था, तंग करता था. तो एक पार्ट तो अजीब हो गया, मैंने कुरान पढ़ा, बल्कि मैंने हिफ्ज़ किया कुरान. अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे दूसरे काम में मौलवी साहब कामयाब नहीं हो सके. लेकिन हमारे मदरसे में तो बैंक से काफ़ी लड़ाई होती थी, लेकिन वो एक हद तक होती थी. बहरहाल वो कामयाब नहीं हो सके अपने उस हल में. स्कूल टाइम पूरा होने के बाद जाहिर है डीजे कॉलेज, SM लॉ कॉलेज. डीजे कॉलेज के बाद आई जॉइन माय ब्रदर. हमारा फैमिली बिजनेस है जूते का. वन ऑफ माय कज़न इज सिटिंग बिहाइंड मसूद नवाब इंग्लिश फूड हाउस. तो हमारा आई जॉइन माय ब्रदर दैट आई शुड सपोर्ट द बिजनेस. बट माय ब्रदर after he had some other thoughts, he said no, I should continue my education. And मैंने SM लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया. Perhaps he had the dream that I should be a lawyer. हमारी फैमिली में काफ़ी जजेस और काबिल तरीन वकला और काबिल तरीन जजेस रहे हैं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम सच एज मंसूर डारफी, निज़ाम अहमद साहब. मंसूर डारफी, नूर डारफी साहब के साथ मेरा बहुत शुरू में इंटरेक्शन रहा, जिन्होंने मुझे बताया कि ये आपने जो वकालत पढ़ी है, ये लोहे के चने अगर चबा सकें तो आप चबा लें, वरना आपको पेट में दर्द करेंगे. तो आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ मंसूर डारफी. मुझे बड़ा डर लगता था इनसे, बहुत. मैं शायद करीब भी नहीं जाता था इनके. जब मुझे पता लगा कि मुझे शायद इनके साथ काम करना पड़ेगा, मैंने घर में कहा कि मैं नो, आई विल. आई जॉइन निज़ाम साहब को ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद मैंने कहा कि नहीं, मंसूर डारफी इज़ ओके. तो आरिफीन साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मुझे he asked me that I should start practicing civil court, which was, of course, it was right. Then he asked Mr. Naik if I could join him. उन्होंने मुझे वेलकम किया. माय सेकंड ऑफिस नाइक एसोसिएट्स था, और उस ऑफिस से मुझे बेतहाशा सीखने को मिला. केस कंडक्ट करना, ऑफिस किस तरह चलाया जाता है, क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील किया जाता है. इट वाज माय कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाज बिकॉज ऑफ द ऑफिस ऑफ नाइक. बट ऑफ एंड ऑन मैं आरिफीन साहब से
मैंने सारी ज़िंदगी गाइडेंस ली है। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया, शुरू के दिन थे, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा केस आया मेरे पास। आरफी साहब उस वक्त मोहम्मदी हाउस में ऑफिस होता था उनका, तो मैं वॉक करके जाता था, 15-20 मिनट की वॉक अपने ऑफिस से, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती थी। तो मैंने वो डिस्कस किया उनसे अपना, ही इज़ ऑलवेज वेलकम मी, कभी भी मैं जाऊँ तो मुझे मेरा ऑफिस, मुझे आरफी साहब का खुला मिलता था कि, तो मैंने उनसे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस किया। नज़रें नीची झुकाए, मैंने मुझसे 20 मिनट तक सुना गुस्से की निगाहों से, और मुझे देखते रहे। फिर एकदम से उठे, मैं डर गया, फिर कोई मुखलती हो गई। बराबर से किताब लेके आए 600 पेज की, और कहा कि ये किताब लो, एंट्री कराओ लाइब्रेरी के पास कि तुम लेके जा रहा हो, वापस लेकर आओगे। वो 600 किताब की पेज पढ़ने का कहा कि ये पढ़ के वापस आके मुझे बताओ कि इसमें जो तुम्हारे सवाल आते हैं उसके आंसर तुम्हें मिले, और मुझे भी बता देना। और दिस इज़ हाउ ये अपने, कम अज़ कम मेरे साथ इस तरह किया। और ये शायद मेरे ब्रॉटअप का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ये कि इट वॉज नॉट एन एक्सटेम्पोर आंसर बाय हिम और बाय एनी ऑफ सीनियर्स ऑफ हिज टाइम, बल्कि वो किताब पढ़ने की तरजीह देते थे। आज शायद हम किताब पढ़ने से थोड़ा सा दूर हो गए। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स that what I have earned is I am delivering. So I continued to practice since 1992, and then 96 my own office. जो इस इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया, जितना दिया, शायद मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर करके थक जाऊं, जो मैं नहीं रिटर्न कर सकता। शायद मैं 1 इंच भी रिटर्न नहीं कर सकता जो इस इंस्टीट्यूट ने मुझे दिया। एवरीथिंग, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर, मनी। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, शायद इस प्रोफेशन ने मुझे लाइफ पार्टनर भी दिया। Junaid is witness, and perhaps Mr. Makhdoom is also a witness. It was materialized here. And I'm blessed with 2 daughters, the beautiful daughters. Of course, their beauty is via my wife. So Mifra and Lamia, my 2 daughters, the elder daughter is studying law, fulfilling my dream to be a barrister. And then the other one, Lamia, hopefully, and she'll be a doctor, inshallah. So, I'm really very happy now that I have achieved जो शायद मैं I couldn't have even remotely thought of achieving. शायद मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की परवरिश का नतीजा है कि जो शायद इस काबिल हम नहीं थे, मैं नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया उस मेरी माँ बाप की दुआओं से। प्रोफेशन में आने के बाद अच्छा बुरा वक्त, माय फैमिली, माय वाइफ, माय डॉटर्स, दे स्टूड बिसाइड मी थ्रू थिक एंड थिन, वी वर टुगेदर। आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली, आई एम थैंकफुल टू माय वाइफ, आई एम थैंकफुल टू माय डॉटर्स, दे वर देयर व्हेन आई नीडेड देम। जहाँ तक सवाल है मेरी प्रोफेशनल जर्नी का, इट इज़ कंटिन्यूड। जो कुछ भी मैंने यहाँ अचीव किया, मैंने डिलीवर किया, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैंने सिर्फ अपनी काविश से अपनी विजडम को एक्सप्रेस किया, शायद वो आगे आने वाले लोगों के लिए कुछ मशले रहा हो। जूनियर जजेस, एडवोकेट्स, जो अपकमिंग एडवोकेट्स हैं, माशाल्लाह उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और बढ़ते रहेंगे। किताब पढ़ना और कानून की किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कानून की किताब के अलावा भी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक्सपोजर मिलता है। बताने का मकसद ये है कि जो मुझे लगा, आज मैं एज ए चीफ जस्टिस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, तो शायद मैं आपको बता सकूँ कि मैंने क्या चीज़ है जो थोड़ी सी कमी महसूस की। वो ये
एक फाइल का पढ़ना, किताब का पढ़ना, लॉ का पढ़ना, वो थोड़ा सा हमने कम कर दिया है. So I would urge and request all the councils, advocates कि वो फैक्ट्स, अपने फाइल के फैक्ट्स पढ़ें, लॉ पढ़ें. तारिक मंसूरी साहब बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छा कमांड है, थोड़ी सी मेहनत करते रहें, थोड़ी सी डांट सुन लेते हैं. बट आई टेल यू, if you work hard, you'll be an asset of this court and all other advocates as well. During my judgeship of 13 years, यकीनन जज को गुस्सा भी आता है, आना नहीं चाहिए, कोई गलती भी हो जाती है हमसे या आपसे. तो चूंकि हम यहाँ से जा रहे हैं, मैंने तो आपकी गलतियाँ सारी माफ़ कर दी. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम सब से कोई दानिस्ता नादानिस्ता गलती हुई है तो प्लीज़ फॉरगिव अस. लेकिन कोई नहीं होती. That's it, with the request that you will always keep us in your prayers, so that we may continue to work in the same way, dedication and honesty. Thank you very much. I seek permission from the chair to close the ceremony. The ceremony is hereby concluded. Matters stand discharged except urgent cases.